systems. They were FPS system, CGS system, MKS and SI. You know their full forms: foot pound second, centimeter gram second, meter kilogram second and standard international. In all these systems there were some fundamental quantities, okay, for mass, length and time. We had drawn the chart yesterday, ठीक है. उस चार्ट पे सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्रेस कर दिया था, ठीक है. प्राइमरीली जैसे आप देखेंगे एफपीएस सिस्टम में मास के लिए क्या था, पाउंड. थोड़ा सा मैं वेरीफाई कर दूं, कल जो अपने पढ़ा था उसको एक छोटा शॉर्ट अपन रिवीजन कर लेते हैं. मास के लिए क्या था, पाउंड. लेंथ के लिए फुट और टाइम के लिए क्या था, सेकेंड. इन सीजीएस सिस्टम मास के लिए था ग्राम, फॉर लेंथ इट वॉज सेंटीमीटर एंड फॉर टाइम इट वॉज सेकेंड. इन एमके सिस्टम किलोग्राम फॉर मास, लेंथ के लिए मीटर एंड टाइम के लिए सेकेंड, ठीक है. ये सफिशिएंट थे 1800 और उसके पहले तक. दीज थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज वेर सफिशिएंट टू sufficiently explain, they can sufficiently explain all physical quantities. But afterwards when electricity was found, then intensity of light, chemical masses and all other things related to heat are known to us. Then a few more fundamental quantities are added into it. Those fundamental quantities were ampere for current, then mole for chemical mass, then temperature के लिए Kelvin था and finally intensity of light के लिए candela. These 4 and 3, that is mass के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर्स एंड टाइम के लिए सेकेंड, ये 7 क्वांटिटीज कंबाइंडली वी कॉल देम फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है. तो ओरिजिनली इनिशियली सिर्फ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, मास के लिए केजी, लेंथ के लिए मीटर्स एंड टाइम के लिए सेकेंड. बट आफ्टरवर्ड्स दीज 4 अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज वर एडेड, दैट इज एम्पियर फॉर करेंट, मोल फॉर केमिकल मासेस, केल्विन फॉर टेम्परेचर and candela for intensity of light. With the help of all these fundamental quantities, we can write dimensional equation of any physical quantity. Definition क्या होती है? The expression which shows how and which of the fundamental quantities represent the given physical quantity, that is called dimensional formula. Repeat, the expression which shows how and which of the fundamental quantities represent that given physical quantity is called dimensional formula of that physical quantity. For example, अपन example से शुरू करेंगे तो better होगा. For example, velocity or speed. Velocity की क्या definition देते हैं? It is rate of displacement, time rate of displacement, that is displacement upon time. This is velocity. Now displacement is L, length, distance is measured with the help of L and time is measured with the help of T, capital T. We represent it by capital T. So it will be L upon T or L to the power 1, T to the power minus 1. But this dimensional equation is not complete if we do not write M. So we must write M also. So we will write it as M to the power 0 as it is not there, L to the power 1 and T to the power minus 1. This is dimensional equation for velocity और स्पीड. स्पीड भी सेम आएगा क्योंकि स्पीड की वैल्यू क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट की. यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल हो जाता है, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल. और टाइम तो वैसे ही रहेगा, टाइम. तो डिस्टेंस को भी एल से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करेंगे. सो एल अपॉन टी सेम डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगा. दैट मीन्स देर आर मैनी फिजिकल क्वांटिटीज विच मे हैव सेम डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है. जैसे आपने एक पेयर यहाँ देख ही लिया, वेलोसिटी एंड स्पीड, दे आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज. अपन बाद में देखेंगे, दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट. एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट देयर मे बी अ फ्यू फिजिकल क्वांटिटीज हुज डायमेंशनल इक्वेशंस मे बी सेम. सेकेंड, आप इसके बाद किसको ले रहे हैं, एक्सेलरेशन को. एक्सेलरेशन क्या होता है, रोज गाड़ी चलाते होगे, ठीक है, आप बोलते होगे शुरुआत में एक्सेलरेट किया, देन वी स्टार्टेड विथ ए कांस्टेंट स्पीड एंड देन फाइनली ब्रेक्स अप्लाई किया, मतलब रिटार्ड किया या डी एक्सेलरेट किया. That means we try to change velocity or speed with respect to time. That change in speed, change in velocity with respect to time, change in velocity upon time interval is defined as
acceleration. Change in velocity or velocity has same dimensional equation lt minus 1 and time interval is t. इसको ऊपर ले जाएंगे तो इट विल बिकम lt to the power minus 1, m absent है तो m to the power 0, l to the power 1, t to the power minus 2. In this way we can express acceleration. So dimensional equation of acceleration है m to the power 0, l to the power 1, t to the power minus 2. मैंने यहाँ साइड बाय साइड यहाँ समझाते जा रहा हूँ और यहाँ सारे डायमेंशनल इक्वेशन लिखे हुए हैं. बाद में आप लोगों को इसका एक फ़ोटोग्राफ जो है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ये आप लोगों को क्लासरूम में मिल जाएगा. ठीक है, जितनी भी मैं फिजिकल क्वांटिटीज लिख रहा हूँ. ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको कभी भी रिवाइज़ करना हो तो सिर्फ क्लासरूम में जाकर के उन डायग्राम्स को देख लोगे, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी उसमें. ठीक है, बुक में ढेर सारे डायमेंशनल इक्वेशन दिए हैं. ठीक है, एग्जैक्टली स्पीकिंग कुछ बुक्स में 150 180 तक डायमेंशनल इक्वेशन दिए हैं, बट दे आर नॉट, इतने सारे याद रखना थोड़ा टफ है. ठीक है, तो बेटर ये होगा कि उनको याद ना किया जाए, बल्कि उनकी जो डेफिनेशंस होती हैं उन डेफिनेशन से उनको सॉल्व करके निकाला जाए. जैसे अभी अपन ने 2 निकाल लिया. तीसरा है मोमेंटम. क्या होता है मोमेंटम? मोमेंटम क्या होता है? आपने कई बार देखा होगा कि यदि आपको एक सुमो रेसलर को गिराना, बहुत वजनदार है वो, 300 kg उसका वेट है. ठीक है, और आपको उसे हिट करना है, उसको गिराना है. ठीक है, उसको बीट करना है, तो आप क्या क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं? बहुत से लोग अलग अलग बातें बोलेंगे कि वो तो सुमो रेसलर, हम नहीं गिरा सकते. ठीक है, पर ऐसा नहीं है. ठीक है, यदि वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जगह में खड़ा है और आप उससे दौड़ लगा करके हिट करेंगे तो सर्टेनली वो गिर जाएगा. ठीक है, चांसेस हैं दैट ही में फॉल डाउन. आप बहुत तेज़ स्पीड से बॉल फेंकना चाहते हो, आपने देखा होगा कि कई बहुत वेल बिल्ड पर्सन होते हैं एंड दे रन एंड थ्रो द बॉल, बट द स्पीड ऑफ द बॉल इज़ नॉट दैट मच. बट समटाइम्स एक बिल्कुल जो कहना चाहिए कम लैंकी टाइप का एक आदमी जो वेल बिल्ड नहीं है, वो सही तरीके से रन करता है और सही तरीके से बॉल फेंकता है, तो स्पीड ऑफ दैट बॉल सीम्स टू वेरी वेरी हाई. ठीक है, बहुत से फास्ट बॉलर्स होते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर सिर्फ उसकी स्टेमिना, उसकी पावर से मतलब नहीं है. ठीक है, जो उस ऑब्जेक्ट को फोर्स दे रहा है वो, ठीक है, दैट फोर्स विच ही इज़ प्रोवाइडिंग टू दैट बॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और उस केस में आप देख रहे हो कि सिर्फ अकेले उसकी मास से काम नहीं चल रहा है. जैसे एक गोली, बुलेट है, वो बुलेट जो है यदि आपके हाथ में पकड़ा दी जाए निकाल के गन में से और बोला जाए सामने वाले को मारो फेंक के, कुछ नहीं होने वाला. बट यदि उसी बुलेट को आप गन में रखते हो और हिट करोगे तो सर्टेनली बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट को वो गिरा सकता है. तो क्या डिफरेंस हुआ दोनों केसेस में? मास तो दोनों केस में सेम है, उनके अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टी वो भी सेम थी, बारूद भरा हुआ था जो, लेकिन एक में आपने कम स्पीड से फेंका और दूसरे में विथ वेरी हाई स्पीड. एंड दैट स्पीड इज़ दैट कॉज बाय वर्च्यू ऑफ विच इट इज़ हिटिंग एंड स्प्लिटिंग द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो वो जो मास और वेलोसिटी दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वी से दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी एज मोमेंटम. So momentum is mass into velocity. We can say that it is that particular physical property which indicates how much that particular velocity will convert into force. बाद में देखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ में, that rate of change of momentum is numerically equal to force applied on the object. तो मोमेंटम ही है जो फोर्स में चेंज होता है. तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? मोमेंटम इज डिफाइंड एज मास इनटू वेलोसिटी. मास इनटू वेलोसिटी. अब भी अपन ने देखा मास को तो आप m से शो करोगे और वेलोसिटी को किससे शो किया था? L1 t टू द पावर -1. दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिल जाएगा? m टू द पावर 1, l टू द पावर 1, t टू द पावर -1. तो दिस विल बी डायमेंशनल इक्वेशन फॉर मोमेंटम. तो मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. देन नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज फोर्स. अभी मैंने बताया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to force applied on the object, न्यूटन सेकेंड लॉ. लेकिन फोर्स को एक दूसरे तरीके से भी अपन रिप्रेजेंट करते हैं. फोर्स इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, जो 9th या 10th क्लास में आपने पढ़ा है. तो फोर्स इक्वल्स टू क्या हो गया? मास इनटू एक्सेलरेशन. मास को m से शो करते हैं, एक्सेलरेशन को lt-2 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 l1 t-2. ठीक है, इस तरीके से आप फोर्स को रिप्रेजेंट कर देंगे. तो आप एक तरीके से देख रहे हो कि आपको यदि डेफिनेशन पता है उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की, तो आपको रट्टा नहीं मारना है उसका डायमेंशनल इक्वेशन, बल्कि उसको सिंप्लीफाई करके आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज प्रेशर. प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया. द फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया. दिस इज प्रेशर.
अब फोर्स को अब भी अपने निकाला है, फोर्स का क्या निकाला था डायमेंशनल इक्वेशन, m1 L1 T - 2। एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ, या बोल सकते हैं L इंटू एल, लेंथ को भी L से मेजर करेंगे और विड्थ को भी L से मेजर करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये L²। तो यहाँ अपॉन में L² कर देंगे, सिंप्लीफाई करें तो m⁻1 2 ऊपर जाएगा तो L⁻⁻1 T⁻²। दिस विल बी डायमेंशनल इक्वेशन फॉर प्रेशर, यहाँ लिखी हुई है प्रेशर के लिए m⁻1 L⁻⁻1 T⁻²। ठीक है, इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट डायमेंशनल इक्वेशन फॉर प्रेशर। इतनी होने के बाद अब मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ बीच वाला हिस्सा, ठीक है, और समझना भी है क्योंकि वो आपके लिए नहीं हो सकती है। अभी देखेंगे अपन, टॉर्क आप नहीं जानते, स्ट्रेस स्ट्रेन आप नहीं जानते, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपने कहीं पढ़ा नहीं है, सरफेस टेंशन भी कहीं पढ़ा नहीं है, ऐसी अभी ढेरों क्वांटिटीज़ आएंगी। तो शुरू की क्वांटिटीज़ तो शायद थोड़ा बहुत जानते थे आप लोग, वेलोसिटी जानते थे, एक्सेलरेशन जानते थे, फोर्स जानते थे, प्रेशर भी जानते थे, ये सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम और डेंसिटी ये भी आपने पढ़ा हुआ है। क्या होता है वॉल्यूम? वॉल्यूम इज डिफाइंड एज, यदि आपको क्यूब का निकालना है तो आप बोलते हो ए क्यूब, यदि आपको एक क्यूबॉइड का निकालना है तो आप बोलते हो ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, तो आपको पता है कि 3 डायमेंशन 3 लेंथ का प्रोडक्ट होता है, ए इंटू बी इंटू सी, ये वॉल्यूम है। तो L इंटू एल इंटू एल, दैट इज L³। दिस इज डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वॉल्यूम। तो सीधा सीधा उसको क्या लिख दोगे आप, m⁻0 L⁻3 T⁻0, क्योंकि m और t तो है नहीं तो पावर 0 लिख दोगे इसका। नेक्स्ट इज डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज डिफाइंड एज एक्चुअली मास जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड डेंसिटी होता है। तो मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज डेंसिटी, मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम, सो मास अपॉन वॉल्यूम, दिस इज डेंसिटी। मास को आप कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे और वॉल्यूम को L³ से, तो m⁻1 L⁻⁻3 T⁻0। दिस विल बी डायमेंशनल इक्वेशन फॉर डेंसिटी। अभी आपने देखा है पूरी 7 क्वांटिटी जो है, 7 क्वांटिटीज़, ये आपकी पहले पढ़ी हुई क्वांटिटीज़ थी। ठीक है, और सब आपको थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन उनकी पता थी, सो इजीली यू कैन फाइंड द डायमेंशनल इक्वेशंस। अब कुछ अभी वर्क एनर्जी और पावर भी आपका पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद की क्वांटिटीज़ मैंने नहीं लिखी हैं क्योंकि दे आर न्यू, और थोड़ा सा अपन उनके बारे में लर्न करेंगे फिर उसके बाद लिखेंगे। व्हाट इज़ वर्क? वर्क इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यही पढ़ा था आपने। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अलॉन्ग F। तो फोर्स तो आपने लिख दिया mL⁻2, मुझे तो याद है, आपको भी याद कर लेना है, कल तक आपको सारे डायमेंशनल इक्वेशन याद हो जाने चाहिए, क्योंकि कल मैं पूछूंगा आप लोगों से और आप तुरंत मैसेजिंग करेंगे मुझे। ये हो गया फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट इज L, सो विल राइट इट एज m1 L⁻T T⁻²। दिस इज डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वर्क डन। रिपीट, वर्क इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स का तो अपन ने निकाला था मास इंटू एक्सेलरेशन से, निकाला था mL⁻2, और डिस्प्लेसमेंट का L है, प्रोडक्ट कर देंगे तो mL² T⁻²। ये हो गया वर्क। पावर क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन इज डिफाइंड एज पावर, सो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का भी अपन ने निकाला mL² T-2, और टाइम का t ऊपर जाएगा तो mL² T⁻⁻3। ये डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ पावर हो जाएगा। ठीक है, ये इतनी 9 चीज़ें आपकी पुरानी पढ़ी हुई। ठीक है, और भी हैं 5-6 चीज़ें जैसे एंगल वगैरह, उसको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन अब कुछ नई चीज़ों को डिस्कस करने का समय आ गया है। ठीक है, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है टॉर्क। अभी आपने जो वर्क का निकाला हुआ है उसको ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि उसका यूज़ होने वाला है। टॉर्क क्या होता है? आप जब भी फैन को ऑन करते हो तो इट स्टार्ट टू रोटेट अराउंड द एक्सिस। व्हेन एवर यू अप्लाई फोर्स ऑन ए डोर or window, it starts to rotate around the axis. You observe that sun is center of this particular solar system, and earth as well as all planets are circulating around it. वो circular motion में है। You also find that this particular earth is rotating around the axis, जिसके कारण डे और नाइट होता है। ठीक है, अर्थ जो रोटेट करती है सन के चारों तरफ सर्कुलेट करती है, उससे ईयर बनता है, और अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड जो रोटेट करती है उसके कारण क्या बनता है? डे एंड नाइट। तो जितने भी ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहे हैं, रोटेशनल मोशन में हैं, जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करोगे दे विल नॉट रोटेट। पर फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे? मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको
कि यदि मैं एक डोर है, अब यहाँ से आपको डोर दिख नहीं रहा है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, सिंपली यहाँ से एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, उससे आप समझने की कोशिश करें। ये डोर है, ये इसके हिंजेस हैं जिस पे फिक्स्ड है ये। आप यदि डोर पर अलॉन्ग इस तरीके से सीधा ऐसे फोर्स लगाएंगे तो इट विल नॉट रोटेट एट ऑल, लेकिन आप इस तरीके से फोर्स लगाएंगे एट 90 डिग्री टू इट विल स्टार्ट टू रोटेट। ठीक है, आप यदि पास से फोर्स लगाएंगे यहाँ पर एक्सेस के पास में, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा रोटेट करने के लिए, और आप यदि इस पर फोर्स लगाएंगे तो कभी रोटेट होगा ही नहीं। तो इसका मतलब सिर्फ फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, एक और चीज़ होती है रोटेशनल मोशन के लिए, वो है हाउ वी अप्लाई दैट फोर्स। ठीक है, एंड इन विच डायरेक्शन वी अप्लाई द फोर्स। ठीक है, आप सीधा सीधा अलॉन्ग जिस पॉइंट से एक्सिस जा रहा है उसी की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं करने वाला। ठीक है, तो आप यदि परपेंडिकुलर एग्जैक्टली नॉर्मल लगाते हैं डोर के 90 डिग्री पर और एक्सट्रीम एंड पर लगाते हैं सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर, तो ईजिली रोटेट कर जाएगा। एंड दैट्स वाई दिस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका प्रोडक्ट जो होता है एक फिजिकल क्वांटिटी होती है विच इज कॉल्ड टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। whenever we apply force on a object and we observe that object starts to rotate around some axis, that means that force is showing rotational effect. That rotational effect of force is defined as torque. Its value depends on two things. Its value depends on force, number one, and how that force is applied and at which point, and that is defined with the help of this perpendicular distance of force from axis of rotation. ठीक है, perpendicular distance of force from axis of rotation. कोई क्वेश्चन? ठीक है, और अब यदि मैं इस पर फोर्स अप्लाई करता हूँ इस तरीके से, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ उसकी जो एक्शन है वो किससे पास हो रहा है? उसके एक्सिस से पास हो रहा है। तो आप देख रहे हैं इट इज़ नॉट रोटेटिंग एट ऑल। मैं पूरा उसके ऊपर अपना फोर्स लगा के खड़ा हुआ हूँ, बट स्टिल इट इज़ नॉट रोटेटिंग। ठीक, और अब मैंने इस पर 90 डिग्री पर एक छोटा सा फोर्स लगाया है और ये रोटेट होने लगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स किस तरीके से लगा रहे हैं इस पर डिपेंड करता है ये रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, अब मैं यदि इसको इधर इस हैंडल पर फोर्स लगा रहा हूँ तो इजीली ये रोटेट हो रहा है, लेकिन यही फोर्स मैं यदि यहाँ लगाने की कोशिश करूँगा तो आई हैव टू अप्लाई मोर अमाउंट ऑफ फोर्स, और यदि मैं एक्सिस पर फोर्स लगाऊंगा तो इट विल नॉट रोटेट एट ऑल। ठीक है, और इसीलिए ये जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, ये ठीक है, मैं 90 डिग्री से रोटेट कर रहा हूँ, ये फोर्स जो अप्लाई कर रहा हूँ पेन की डायरेक्शन में, इसकी इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, एक्सिस ये है, हिंजेस जो हैं उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, यदि मैं इसको किसी एंगल पे करेंगे इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होती जाएगी। जब आप एग्जैक्टली नॉर्मल रखेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू विड्थ ऑफ दैट डोर। विड्थ से ज़्यादा तो हो नहीं सकती डिस्टेंस। ठीक है ना, तो ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। So torque is defined as product of force which we apply on it and perpendicular distance of that force from axis of rotation. ठीक है, यदि आप एग्जैक्टली 90 डिग्री पर लगाते हैं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम होगी और किसके इक्वल होगी? उसके विड्थ के इक्वल होगी। यदि मैं अलॉन्ग द लेंथ लगाने की कोशिश करूंगा इस तरीके से तो इट विल नॉट रोटेट, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बचेगी नहीं, एक्सिस से ही पास हो जाएगा, तो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगी, सो इट विल नॉट रोटेट। ठीक है, और इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग है, सिर्फ फोर्स से टॉर्क डिफाइन नहीं होगा, बल्कि फोर्स के साथ साथ आपको किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए? फोर्स के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम मैं और बनाता हूँ जिससे आपको और एग्जैक्टली बना हुआ है, मैं उसको एक बार समझा देता हूँ, सीधा कर देना। MLT-2 यही था फोर्स, और मुझे तो याद हो गया, आप लोगों को भी याद हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है फोर्स MLT-2, और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L। तो ओवरऑल कितना हो जाएगी इसकी वैल्यू? M1 L2T-2। ठीक है, तो इस टॉर्क की डायमेंशनल इक्वेशन भी आपको वही मिल रही है जो वर्क की थी, लेकिन दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। वर्क जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि टॉर्क जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। किस तरीके से घूमती है चीज़ें, क्या इसके अलावा और कोई डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के अलावा? नहीं होती। ठीक है, पर ही डायरेक्शन तो होती है, दैट मीन्स दैट टॉर्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क एनर्जी जो है स्केलर क्वांटिटी है, पर तब भी आप देख रहे हो कि उनकी डायमेंशनल इक्वेशन कैसी है? सेम है। अक्सर आपको एग्जाम में पूछता है
राइट अ फ्यू पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिफरेंट बट देयर डायमेंशनल इक्वेशंस आर सेम। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था वेलोसिटी एंड स्पीड, ठीक है। ये दूसरा अपने पास आ गया टॉर्क एंड वर्क। ये दोनों की डायमेंशनल इक्वेशन सेम है, दैट इज m1 L2 t टू द पावर -2। अब इसके बाद अपन आने वाले हैं स्ट्रेस पर, ठीक है। स्ट्रेस समझने के पहले आप यदि अपने हाथ में स्पंज का एक टुकड़ा लेते हैं और उसको प्रेस करते हैं तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम चेंज जाता है, शेप चेंज जाता है, साइज भी चेंज जाता है। व्हेन वी रिमूव द फोर्स दैट स्पंज रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। रबर भी ऐसे ही होता है, ठीक है। सारे ऑब्जेक्ट ये प्रॉपर्टी शो करते हैं बाय वर्च्यू ऑफ विच दे अपोज एनी चेंज इन देयर शेप और साइज। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। जो जितना ज़्यादा अपोज करेगा उसकी इलास्टिसिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो एक रबर दे दें आपको और एक स्टील वायर दे दें, तो इसमें से किसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी? जनरली लोग इलास्टिसिटी सुनते ही साथ रबर बोल देते हैं। इट इज़ रॉन्ग। रबर की इलास्टिसिटी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि रबर तो ईजीली डिफॉर्म हो जाता है, और आप स्टील के एक बॉल को यदि डिफॉर्म करना चाहें तो पॉसिबल है क्या? वी हैव टू अप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इन दैट केस। बट यदि रबर की बॉल को लेंगे तो ईजिली डिफॉर्म कर सकते हैं। तो जो ईजिली डिफॉर्म हो जाए उसकी इलास्टिसिटी लो है, ठीक है, बिकॉज प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिंग एनी चेंज इन शेप और साइज इज डिफाइंड एज इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी इज दैट प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस एनी चेंज इन इट्स शेप और साइज। जो जितना ज़्यादा अपोज करेगा उसकी इलास्टिसिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। जितनी नेचुरली ऑब्जेक्ट मिलते हैं उनमें आइवरी जो होता है, हाथी दांत, ठीक है, उसकी सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। और सबसे कम इलास्टिसिटी जो होती है वो टेल्कम पाउडर या पाउडर की होती है। आप हल्का सा उसके ऊपर पुश कर दो, शेप चेंज जाता है उसका, ठीक है ना। तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ कम, ठीक है। तब हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाता है वो, जो उसके शेप या साइज़ को चेंज करता है। सच डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डिफाइंड एज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या हो गया? स्ट्रेस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया। तो फोर्स के लिए तो होता है mlt-2 और एरिया के लिए l²। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो क्या मिलेगा? ml-1t-2। ये स्ट्रेस का हो जाएगा। अभी अपन ने इसके पहले यही डायमेंशनल इक्वेशन एक और फिजिकल क्वांटिटी का देखा था। आप लोग देख पाएंगे कौन सा है ये? प्रेशर, ठीक है। प्रेशर भी क्या था? फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। और इसका भी डायमेंशनल इक्वेशन यही था जो स्ट्रेस का आया है। तो ये एक और पेयर हो जाएगा जिसका डायमेंशनल इक्वेशन सेम है, दैट इज प्रेशर एंड स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा? ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, then its shape or size may change. When we remove the deforming force, generally the object returns back to its original position. Generally, हमेशा नहीं होता। आपने बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगा दिया जो उसकी इलास्टिक लिमिट के बाहर हो तो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। एक लकड़ी को तोड़ ही दिया आपने दोस्तों फोर्स लगा करके, तो वो इलास्टिसिटी तो उसकी प्रॉपर्टी के बाहर चले गए, उसकी लिमिट के बाहर चले गए। तो हम जब बात कर रहे हैं यहाँ विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है, यानी आप फोर्स अब रिमूव करेंगे तो ऑब्जेक्ट शुड रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। दैट डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज स्ट्रेस, ठीक है। इस स्ट्रेस के लगाने से क्या हो रहा है? वाई एल इज माइनस होती है। जब हम इलास्टिसिटी का चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में तो विल लर्न अबाउट दिस डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस, ठीक है। वो स्ट्रेस नहीं है जो हम अपने जीवन में महसूस करते हैं, बोलते हैं ना बहुत स्ट्रेस है लाइफ में, ठीक है। वो भी स्ट्रेस है बट वो मेंटल स्ट्रेस है, ठीक है। वो भी आपको डिफॉर्म कर देता है, आपकी सारी चीज़ों को डिफॉर्म कर देता है। जैसे अभी आप बहुत मेंटल स्ट्रेस में हैं, ठीक है, कि अब अपना दिन भर घर में रहना पड़ता है, खेलने को नहीं मिलता, कहीं जाने को नहीं मिलता, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रेस, पर वो मेंटल स्ट्रेस है, ठीक है। ये स्ट्रेस से उस स्ट्रेस का कोई लेने देना नहीं है, ठीक है। दिस स्ट्रेस इज फिजिकल वन, इट इज़ द रेशियो ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स एंड एरिया। नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रेन। अभी अपन ने क्या देखा कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, तो उसका शेप या साइज़ चेंज हो जाता है। शेप या साइज़ चेंज हो जाता है। एक रबर की वायर रही है, उसको अलॉन्ग द लेंथ आप खींचेंगे तो लेंथ चेंज हो जाएगी। एक स्पंज लेंगे और उसको प्रेस करेंगे तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा,
ठीक है, तो उसके जिस डायमेंशन में चेंज हो रहा है उसकी रिलेटिव वैल्यू, दैट मीन्स चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड। मैंने जैसे बताया कई अलग टाइप के हो सकते हैं, मैं स्ट्रैंड सिर्फ समझा रहा था, तो उसमें अब स्पेसिफिक मैंने ले लिया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड। when we apply force on a wire along its length within elastic limit, then we observe that its length changes, then change in length upon original length, this ratio is defined as strand। तो चेंज इन लेंथ भी L है, ओरिजिनल लेंथ भी L है, तो डायमेंशनल इक्वेशन कितना मिल जाएगा इसका, m0 L0 T0। वी कॉल सच क्वांटिटीज डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। ठीक है, तो पहली डायमेंशनलेस क्वांटिटी हमारे सामने आई है वो स्ट्रैन है, अभी बहुत सारी आएंगी। ठीक है, तो स्ट्रैन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आ जाएगा m0 L0 T0। नेक्स्ट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। दिस रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन is defined as modulus of elasticity। तो modulus of elasticity is ratio of stress and strain। It is found that this ratio is always constant for a given physical quantity। रबर के लिए अलग होगा, स्टील के लिए अलग होगा, लेकिन सारे रबर के लिए एक जैसा होगा, सारे स्टील्स के लिए एक जैसा होगा। ठीक है, एंड दिस रेशियो डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल। ठीक है, मटेरियल पर डिपेंड करेगा, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इट इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस को अभी अपन ने देखा m1 L-1 T-2, यही है ना स्ट्रेस। यहाँ कुछ इधर है, ये स्ट्रेस को मैंने लिखा नहीं है, ये तो मैंने उसको समझाया था टॉर्क को, m1 L-1 एंड T-2। ठीक है, ये स्ट्रेस था। ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन तो m0 L0 T0 होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसका डायमेंशनल इक्वेशन भी वही आएगा जो कितना आया था, स्ट्रेस का आया था या जो प्रेशर का था। तो तीन क्वांटिटीज हो गई, प्रेशर मैं भी लिखवाऊंगा आप लोगों को अलग से, स्ट्रेस एंड इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिनकी डायमेंशनल इक्वेशन कैसे हैं, सेम है। ठीक है, फिर अपन ने दो पेयर और देखे थे, वर्क और टॉर्क, जिनकी डायमेंशनल इक्वेशन सेम है। फिर एक और पेयर देखे थे, वेलोसिटी एंड स्पीड, जिसकी डायमेंशनल इक्वेशन सेम है। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ लिखी हुई है मैंने, दैट इज सरफेस टेंशन। लेकिन मैं चाह रहा था कि उसके पहले मैं कुछ और डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ को डिस्कस कर लूँ। जैसे एक मैंने स्ट्रेन को बताया आपको, डायमेंशनलेस है, और एक दो देखते थे, कैसे देखें जरा ध्यान से। अक्सर आप लोगों ने शायद 10th में पढ़ा है रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनकी डेंसिटी को हम किससे रिलेट करते हैं, किसके साथ रेशियो लेते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो वी कॉल इट रिलेटिव डेंसिटी। ये आ गया और ये ऊपर ये आ गया। अब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होती है, m0, अभी अपने देखा था m1 L-3 T0, अभी देखा था डेंसिटी, ये लास्ट में लिखी हुई है, और अपॉन में फिर डेंसिटी ऑफ वाटर है, तो वो भी m1 L-3 T0 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 1 - 1 m0, अब प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आपको, ऊपर नीचे एक जैसा है तो सब कैंसिल हो जाएगा और पावर कितनी बचेंगी, 0 सबकी। तो एक और डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो आपके पास ये 2 स्ट्रेन हो गई, रिलेटिव डेंसिटी हो गई। हम 5 ऐसी डायमेंशनलेस क्वांटिटी अलग से याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछता है राइट 5 और 6 फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डायमेंशनलेस। तो 2 तो आपने देख लिया, स्ट्रेन और रिलेटिव डेंसिटी। तीसरी बहुत सिंपल सी याद रखने के लिए एंगल है। एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। पढ़ा था ये अपन ने, ठीक, ट्रिग्नोमेट्री में कहीं पढ़ा होगा, ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। आर्क मीन्स लेंथ होता है और रेडियस भी कितनी होती है,
लेंथ होती है। तो इसका डायमेंशन भी कितना हो जाएगा, m0 l0 t0। ठीक है, ये तीसरी क्वांटिटी हो गई। तो एक क्वांटिटी स्ट्रेन हो गई, दूसरी क्वांटिटी रिलेटिव डेंसिटी हो गई, तीसरी एंगल हो गई। चौथी याद रखने के लिए एक और अच्छी क्वांटिटी है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं सब डायमेंशनलेस होते हैं। ठीक है, क्या होता है टेन थीटा साइन थीटा, पढ़ा है आप लोगों ने, नहीं पढ़ाई? साइन थीटा इज इक्वल टू हाइट अपॉन हाइपोटेनियस। शायद याद आ रहा हो, ये डायग्राम में बना दूं, क्या मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। ये एंगल थीटा यदि लेते हैं तो ये हाइट कहलाती है, ये बेस कहलाता है और ये हाइपोटेनियस कहलाता है। जबकि ये एंगल कितनी डिग्री का होता है, 90। पढ़ा था ना। तो यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू हाइट अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। अब दोनों तो साइड्स हैं तो एल अपॉन एल हो जाएगा। तो डायमेंशन इक्वेशन कितना हो जाएगा, m0 l0 t0। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा याद ना आए तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज लिख दोगे। ठीक है, तो कौन कौन सी हो गई, स्ट्रेन हो गई, उसके बाद रिलेटिव डेंसिटी भी हो गई, उसके बाद एंगल भी देख लिया अपन ने, एंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, दे आर ऑल डायमेंशनलेस। ठीक है, इसके अलावा बाकी और 3-4 होते हैं जिनको अपन कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज मैंने आप लोग 13 ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तक डायमेंशनल इक्वेशन लिखवाए हैं। उसके अलावा ये 3-4 अलग से बताए हैं जो किसके लिए हैं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी के लिए हैं। ठीक है, ये सब के सब आपको क्लासरूम में एक शीट के फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो आप लोग उसको वहाँ से देख सकते हैं। कल इसके आगे कुछ अलग टाइप के, जैसे प्लांक्स कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सरफेस टेंशन, एक बिल्कुल उनको शॉर्ट में समझते जाएंगे और उनको लिखते जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को जो कुछ भी प्रॉब्लम आती है करके तुरंत पूछ सकते हैं। मैं अपने सामने रखा हुआ हूँ जिससे मुझे दिखते जाए कि आपने क्या प्रॉब्लम पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है। नंबर 1। नंबर 2, आप लोग बाद में भी यदि ऐसा लगता है कि अरे अपन ने ये चीज़ पूछना भूल गए थे, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप पर मेरे पर्सनल नंबर पर, ग्रुप पे नहीं जाए। ठीक है, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी हंसी उड़ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन तब भी यदि लगता है ऐसा आपको, तो सीधे मेरे से व्हाट्सएप मेरे नंबर पर पर्सनली आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चन का जवाब आपको दूसरे ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ये बिल्कुल चैप्टर तो सब ऐसा है कि ये पुरानी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लेकिन एक नए तरीके से उनको अपन पेश कर रहे हैं। ठीक है, आज तक अपन ने नहीं सोचा था कि ऐसे मास, लेंथ और टाइम के सहारे अपन सारी फिजिकल क्वांटिटी को लिख सकते हैं। ठीक है, वो अब लिखने जा रहे हैं अपन। तो कल लगता है कि वो नोट्स पे ना मिले। ठीक है, तो जो चीज़ें आप मैं कुछ अलग से कभी कभी बता देता हूँ तो उन चीज़ों को ज़रूर नोट कर लिया करो। ठीक, आज तो जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं सब नोट्स में मिल जाएंगी आपको। ठीक है, लेकिन कभी कभी मैं ऐसा होता है कुछ नई चीज़ बताता हूँ तो उन चीज़ों को ज़रूर आप तुरंत नोट कर लेंगे। मैं बताते जाऊँगा कि इसको नोट करने करके। ठीक है ना, तो नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसी अपनी क्लासेस रेगुलर यहाँ चालू होती है, आप लोगों को या तो उसकी सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, ठीक है, या फिर आप लोगों को फ़ोटोकॉपी जो है करवानी पड़ेगी उसकी। ठीक है, तो इसकी हम व्यवस्था कर देंगे। जो लोग अपने अपने नोट्स बना सकते हैं पर्सनली, ठीक, अभी टाइम है, खाली टाइम लगा बैठा हुआ है आपके पास, ढेर सारा टाइम है, तो वो पर्सनली भी नोट्स बना सकते हैं। हो सकता है उनके बहुत फ़ायदे में रहे। खुद की बातें ज़्यादा अच्छे समझ में आती है, खुद की लिखी हुई चीज़ें भी समझ में आती हैं। ठीक है, तो यदि कोई बहुत अच्छे नोट्स बना सकता है, किसी को लगता है कि उसके पास प्रॉपर्टी है ये कि अच्छे नोट्स बना सकते हैं, तो बनाएं, अदरवाइज़ आपको मिलेंगे। ओके।